अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की ईमानदारी और ऐसे लोग जो पूरी दयानतदारी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, अगर उनके बीच एक टाइप करा दिया जाए, एक ताल्लुक पैदा कर दिया जाए, तो यकीनन इससे कम्युनिटी भी मुस्तफीद होगी और नेशन को भी ग्रोथ हासिल होगी। तो इस फिक्र के साथ एक कोशिश शुरू हुई बेंगलोर के अंदर। आज उसके जनाब राशिद रहबर साहब जो इन्वेस्टमेंट के हेड हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। राशिद रहबर साहब दारुल उलूम देवबंद से भी फारिग हैं और फाइनेंस के फील्ड में एक अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं। खुद रहबर फाइनेंस में बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर और बॉम्बे के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद बिजनेसेस को प्रमोट किया है और तकरीबन 85 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट है, जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ बिजनेसेस को हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो अगर हम दें, अगर किसी ने, आप तमाम ने आईटी फ्रेश का नाम सुना है? आईटी फ्रेश फूड सुना है आप लोगों ने? आईटी फ्रेश फूड आज 100 करोड़ की कंपनी है और वो बहुत मुश्किल से 5 या 7 साल पुरानी कंपनी है। इनिशियल जो सपोर्ट था आईटी फ्रेश को, वो इनिशियल सपोर्ट रहबर ने फराहम किया था। ये रहबर की एक छोटी सी मिसाल है कि एक छोटे से सपोर्ट के साथ एक छोटी सी कंपनी आज 100 करोड़ की कंपनी है। तो मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ जनाब राशिद रहबर साहब को, जो हेड इन्वेस्टमेंट है रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बेंगलोर से, उनका दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात से तमाम हाजरीन को मुस्तफीद करें कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर बेंगलोर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, अगर बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस की जाए तो किस तरह यहाँ के ताजिर मुस्तफीद हो सकते हैं। जनाब राशिद रहबर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। First of all, I would like to thank Danish Bhai for the introduction and also thank Maishat Media as well as the other wonderful organizations who have brought together all of us together for a very important purpose and very professionally organized this business summit. So I would like to congratulate them and thank them, and also thank them for the opportunity for letting us introduce Rahbar to the stream of West Bengal. So I have a small presentation. Basically, I want to talk about what is the work that Rahbar has done so far, and how were we able to bring about a new structure and use it to benefit both investors and businesses. So in the first slide, if you can see the next slide, we were incorporated in 2013 in Bangalore, and the mission of Rahbar is to enhance Sharia compliant value creation for businesses and investors while bringing them together. Basically, what we are saying is that there are, on one hand, investors who want to invest their funds in a Sharia compliant manner. They want to earn halal returns from their investment. On the other hand, there are businesses who want funds to grow their business, and they want to take funds not on an interest base or not on a non-Sharia compliant manner. They want halal funding for their business. So what Rahbar was able to do is to connect the investors and businesses, bring them together and create value for the whole ecosystem. And Rahbar was set up after more than 1 year of brainstorming between various professionals of CAs, IT professionals, lawyers, and a lot of people who put their mind to this and came up with a structure that we felt was the way forward to bridge the gap that is there and connect the savers and the people who will utilize the funds on a Sharia compliant manner.
And it started very small with 10 shareholders who committed 3 lakhs that they will put in, and it started with 1 lakh each of them put in, and we started the company in 2013. I was the first employee, and then after that, now Alhamdulillah we have about a team of 20, and we'll talk about how we have grown so far. So this is you can see the way that it has grown. This is AUM is basically assets under management, which means how much investment are we managing at any of these particular points. So in the first year it was only about 2 crores that we raised from investors. So one is the shareholders who put in the initial money, and then after that we have a model where we connect investors and businesses. So this is the amount we have raised from investors and invested it in businesses. Then in 15, 16, 16, 17. So we slowly developed the model, had a proof of concept. Once we saw that it's working and it can be scaled, then in the last 3-4 years is when we actually grew. And today we have an AUM of almost 60 crores. So what we do basically is that we fund businesses who approach us. We study the business and see the strengths of the business, if it is capable of taking the funds and giving returns to the investors. And the funding is done in one of 3 structures which we have. So we have leasing, which is basically ijara. So we purchase assets that the business requires and give it to the business, and the business pays us rent on those assets. And that rent तो 10th ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ बिज़नेस समिट का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ सेगमेंट के लोग हमारे पास मौजूद हैं। कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, माइक्रो फाइनेंस के लोग मौजूद हैं, इस्लामिक फ़ाइनेंस के लोग मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ विमेन एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त जो मैसेज अब तक डिलीवर हुआ है वो ये कि कम्युनिटी के साथ साथ ख़ुद कंट्री को किस तरह से ग्रोथ हासिल होता है, उसमें सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। मईशत कनेक्टिविटी पैदा करने का काम करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लोग मौजूद हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे आए हैं। औरतों के लिए खासतौर से वीमेंस पर जो आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या यहाँ की कुछ औरतें भी मौजूद हैं आपके प्रोग्राम में, क्या मैसेज? विमेन एंटरप्रेन्योर्स पे हमने ख़ास तवज्जो दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 विमेन एंटरप्रेन्योर्स का शोकेस यहाँ पे होने वाला है। वो लोग मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में काम कर रही हैं। कोई बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई उस स्कूटी ट्रेनिंग के ज़रिए अपने कारोबार को वसअत दे रही हैं, कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स चलाती हैं, और किसी का मॉड्यूलर किचन है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके तहत वो काम कर रही हैं। हमने कोशिश ये की है कि उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म अता किया जाए, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने भी इस ख्वाहिश के साथ कि वो अगर अपने बिज़नेस को स्केल अप करना चाहती हैं, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहती हैं, तो फाइनेंस कहाँ से मिल सकता है, उनकी मेंटरिंग कैसे हो सकती है, नए आइडियाज़ कैसे जनरेट हो सकते हैं, और नई नई चीज़ें जो मार्केट में हो रही हैं वो कहाँ से हासिल हो सकती हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि मईशत उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भी मईशत बिज़नेस क्लब का हिस्सा बनाया है, और मईशत बिज़नेस क्लब में भी ख़वातीन की बड़ी तादाद इनरोल हुई है। मईशत इस तरह का प्रोग्राम और कब करना चाहिए? मईशत इस तरह के प्रोग्राम्स करती रहती है। तकरीबन 10 सालों से हमारा ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स करते हैं, मुख्तलिफ़ सिम्पोजियम सेमिनार के साथ साथ छोटे छोटे शहरों के अंदर वहाँ की इकनॉमी को डिफ़ाइन करके, वहाँ की ज़रूरत को डिफ़ाइन करके हम वहाँ के लिहाज से मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। बंगाल की ख़वातीन अगर इन ख़वातीन के साथ अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कैसे? बंगाल के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है, और बंगाल में जूट का कारोबार हो या छोटे छोटे और दूसरे इंटरप्राइजेज़ हों, ख़ुद रबर इंडस्ट्री जो है आपकी टेक्सटाइल के साथ साथ रबर इंडस्ट्री, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन इन्वॉल्व हैं।
लेकिन ये अपने प्रोडक्ट को कैसे नेशनल लेवल पे बेच सकें या उसकी तशहीर कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें, इसकी इनके यहाँ कमी पाई गई है। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी मार्केटिंग कर दें, उनके प्रोडक्ट्स को दूसरों तक पहुँचा दें, ताकि उनके ज़रिए वो उनका बिज़नेस जहाँ स्केल अप हो वहीं उनको प्रॉफिट भी हासिल हो। आपसे रब्ता करने के लिए ममता बनर्जी जो है वो दीगर अजला में देखा गया है कि जो औरतों को, खासतौर से वीमेंस को, वो बिज़नेस में आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो ये साड़ी बुनने के लिए हो या फिर दीगर चीज़ों के लिए या फिर बीड़ी बनाने के लिए। क्या आप लोगों का मिशन क्या है? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, हमारी ख़वातीन उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने, उससे इस्तेफ़ादा करें और गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन फैसिलिटीज़ से फैज़याब हों। आपसे कांटेक्ट या रब्ता करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए कैसे जुड़ेंगे? हमारी वेबसाइट है www.maishat maishat.in। maishat.in पे हमारी पूरी तफसीलात मौजूद है। एक दूसरी वेबसाइट जो मईशत एकेडमी की है वो maishat.org maishat.org। तो यहाँ हमारा फ़ोन नंबर, यहाँ एड्रेस, जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमसे इजीली रब्ता कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी, फ़ोन के ज़रिए भी। ये मुंबई से आप लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं और दीगर भी हम लोग मुंबई से वाबस्ता हैं, लेकिन हम लोग मुंबई से वाबस्ता हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ताल्लुक़ है, एक कॉन्टेक्ट है। उस कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, उन ताल्लुक़ात को इस्तेमाल करते हुए, वहाँ की ग्राउंड ज़रूरतों का जायज़ा लेते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ें करने में कामयाब हुए हैं और कामयाब हो रहे हैं। आप बंगाल में ये लेकर के 3 प्रोग्राम किए हैं और आने वाले दौर में कितना प्रोग्राम और कर सकते हैं आप? जैसे जो भी ज़रूरत हमें महसूस होगी इंशाअल्लाह हम उसके हिसाब से प्रोग्राम यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। खुद हम अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा जो विमेन वर्कशॉप हुआ, विमेन वर्कशॉप के नतीजे में आज तकरीबन 35 से 40 ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में एक्टिव हुई और उन्हीं ख़वातीन में से 15 ख़वातीन हमारी शोकेस का हिस्सा हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम आते हैं, हम थ्योरेटिकल बातें सिर्फ नहीं करते। आप अपनी तरफ से न्यू कमर जो आपके साथ ज्वाइन हो गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुख्तलिफ़ बिजनेसेस में, जिनको मेंटरिंग की ज़रूरत है, जिनको किसी तरह के और ताउन की ज़रूरत है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ वाबस्ता हों और हमारे साथ मिलकर अगर कुछ करना चाहती हैं तो हम उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार हैं। एकेडमी जो काम कर रही है जी, एकेडमी क्या कहना चाहेंगे? वीमेंस को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। जी माशाल्लाह, अभी तक हमने जितना सुना कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं इस चीज़ से कि किस तरीके से वो लोग इनकरेज भी कर रहे हैं औरतों को। ख़ासतौर पर हमारे माशरे में औरतों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जहाँ पे विमेन को लगता है कि हम यहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस भ्रम में हैं कि वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारा मज़हब हमें देता है एज़ वुमेन, और ऐसी बहुत सारी राइट्स हैं जो औरतों तक पहुंच ही नहीं रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, कि एटलीस्ट बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और जब इस तरीके से आप शोकेस में बता रहे हैं कि कौन सी औरतें क्या अचीव कर रही हैं, इवन इफ़ इट इज़ एट अ माइनर लेवल, और औरतों को उससे इनकरेजमेंट मिलेगा कि ओके शी इज़ डूइंग समथिंग एंड शी इज़ गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर इट। सो आई रियली बिलीव दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। बंगाल के वो औरतों को क्या मैसेज देंगे जो आज भी हिम्मत तो करती हैं, कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं, मगर बाहर नहीं निकल पाती हैं एजुटेशन को लेकर? हम उनको ये बोलेंगे कि कोशिश करिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो आप मुसलमान पैदा हुए हैं और आपको जिस काम से भेजा गया है, दावत का काम, उसमें ही सोशलाइजिंग सबसे बड़ी बात हो जाती है। जैसे हमारे नबी के बारे में कहा जाता है कि असर के बाद सुन्नत हम क्यों नहीं पढ़ते, कि असर के बाद ही यूज्ड टू मीट पीपल, सोशलाइज करना, लोगों से बातचीत करना, उनके हाल जानना, उनसे राब्ता रखना, अच्छा सोशल बिहेवियर मेंटेन करना, लोगों की मदद करना, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आर सुन्ना, और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। तो औरतों के बारे में जैसे ये चीज़ें बहुत स्टीरियोटाइप की गई हैं कि जब औरतें मिलती हैं तो दे गॉसिप,
दे टॉक अबाउट अदर पीपल। बट अगर औरतों को सही प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर दे कैन गो आउट, दे कैन एक्चुअली हेल्प पीपल विद देयर ओपिनियंस, देयर एक्सपीरियंसेस, जो उनके अंदर सलाहियत है। आपकी सलाहियत का भी कुछ हद तक हिसाब होगा। आपको अपनी सलाहियतों को सही जगह पर इस्तेमाल करना, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ये काम दिया गया है कि आप दावत दो, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ। सो आई बिलीव कि औरतों को वो एक हिम्मत जुटानी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी चाहिए। 20 सालों में ख़वातीन की जो मुआशरे में कितना तब्दीलियाँ आई हैं तालीम को लेकर? पिछले 20 सालों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई। अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे, हमारे माशरे में काफ़ी तब्दीली आई है जी। ओके, इफ़ आई स्पीक अप लाइक दिस, काफ़ी अगर आप देखें यहाँ पे जितने औरतें बैठी हैं वो कुछ लायक है, कुछ बिज़नेस करती है, तब जाके आज वो यहाँ है। सबसे पहली बात मुझे तो खुशी महसूस होती है, बचपन में देखा करते थे वो रिज़र्व में एक नाम रहता है, आज हम जब आए रिज़र्व में हमारा नाम लिखा हुआ है, औरतों का नाम लिखा हुआ है। आई थिंक दैट इज़ अ प्राइड मोमेंट। इट्स हम औरतें क्या चाहते हैं? डिग्निटी, रिस्पेक्ट, लव। इट्स नॉट अबाउट एवरी टाइम फेमिनिज्म, इक्वालिटी, मर्द ऐसे करते और ये सब बातें बात की बातें। अगर आप काम बेहतर करते, आप अपने काम से जाने जाएंगे। इफ़ यू आर वर्किंग समथिंग, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, यू आर नोन टू पीपल। आई think that is important for every women who are working out here today. So that is something great. What type of message you are given to a newcomer, those who are joining? See, newcomers, I'll say basically जो newcomers है, सबसे पहले उन लोग को खुद समझना चाहिए। Be yourself. आपको क्या करना है, हमें ये जानना। हमें दूसरों को देख के नहीं, वो ये कर रही है तो मुझे ये करना है, नहीं। हमें पहले खुद जानना है कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए। What is our want first and what is our what are we good in doing that thing. अगर मैं कोई चीज़ में बहुत उम्दा हूँ, मेरा वो पैशन है करना, जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, आई एम देयर इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, मेरा खुद का जिम है, तो मैं ये चाहती हूँ एक मैसेज, एक अवेयरनेस पैदा करना औरतों में बहुत ज़रूरी। क्या चीज़ ज़रूरी हो चुकी अब के ज़माने से, दे हैज़ टू बी अ चेंज। पहले में और अब में बहुत वक्त में बहुत फ़र्क आ चुके, तो वी नीड अ चेंज, बट दैट चेंज हैज़ टू बी इन अ पॉजिटिव वे। अगर औरतें बाहर निकली तो एक दायरे में हैं हम लोग, बिल्कुल अपने हस्बैंड, अपने पापा की बातें मानकर अपने इस्लाम के दायरे में रहकर काम करना चाहती है, तो वो बहुत अच्छी एक मैसेज होगी औरतों के लिए। उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी ज़िंदगी से हार कर खुदकुशी कर लेती हैं? देखिए, ये तो हमारे इस्लाम में तो खुदकुशी है ही नहीं। सबसे पहले इसकी क्या सज़ा है वो सबको पता है। अगर आप कुरान पढ़िएगा और तजुर्बे के साथ पढ़िएगा तो आपको एक मैसेज वहीं मिल जाएगी। अपने नर्व्स को तो कंट्रोल करना सबसे पहले हमारे सिखाया जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी वो लोग किस सिचुएशन में सुसाइड किए, क्या हो सकता है कि किसके, आई कांट फिट अप इन एनी ऑफ द शूज़ ना, मैं किसी के लिए बोल नहीं सकती अब उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइफ में। बट बहुत सारी बिल्कुल बेशक बहुत, सबको अच्छा एक नहीं मिलता ना, सिल्वर स्पून सबको नहीं मिलता, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो औरतें अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, मैं सबसे पहले जाऊँगी हम औरतों को बात करना चाहिए, थोड़ा सोशलाइज करना चाहिए। अगर आप मेरे प्रॉब्लम सुन ली तो हो सकता है एक प्रॉब्लम से एक हल निकल जाए कि ठीक है मैं इनका कॉन्टैक्ट देता हूँ, तुम इनसे बात करो, एक बार देखो। फट से कुछ गलत स्टेप ना उठा के किसी से बात करके अपने दायरे में रह के भी तो बात कर सकते हैं ना, मदद मांग सकते हैं, इफ़ इट इज़ इन अ गुड एंड जेन्युइन वे। तो आई थिंक दैट इज डन विद इट। खासकर टीनेज को क्या कहना चाहेंगी? जो देखिए, टीनेजर्स को तो मैं 18 साल को 19 साल को उतना मैच्योर्ड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले टीनेजर्स को यही बोलूँगी, सबसे पहले बोलता ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले माँ बाप को चाहिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, किताब को निकाल के डायरी को देखते हैं ना हम लोग कि आज क्या होमवर्क मिला ये, पर बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि हाँ वो लोग सब कर लेंगे, वो लोग जो बोल रहे हैं सच है। थोड़ा वर्कआउट कीजिए, अपने बच्चों को भी थोड़ा फ्रेंडली होकर बात कीजिए, उनको बैठाइए, पूछिए क्या प्रॉब्लम्स है। पर आजकल के हम पेरेंट्स लोग ये नहीं करते, दे थिंक दे आर ग्रोन अप, दे नो व्हाट टू डू, बट जस्ट टॉक विद देम। लेट आप लोग को भी थोड़ा अपडेट होना, एज अ पेरेंट वी हैव टू बी अपडेट ऑल्सो। उन लोग के पास मोबाइल है, दे अपडेट, तो हम लोग को भी अपडेट होना चाहिए ना। वो हम लोग को बुद्धू बना के निकले, मम्मा आज तो ये क्लास है, आप जाइए, उनको छोड़िए, देखिए क्लास है कि नहीं। तो ये सब चीज़ क्या ना हम लोग टीनेजर से लिंक अप कर सकते हैं, उनके वेबआउट्स क्या हम लोग वो सब चीज़ें देख सकते हैं। जी, मैं इनसे भी मोहतरमा से पूछूंगा। जी बताएं, क्या कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंजुम वसीम। जी बताएं। क्या बताएं? ये बताएं कि आजकल की जो दो चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ पे औरतों को ये तालीम, ये तरबियत दी जाती है कि आप मुस्लिम घराने में पैदा हुई हैं और आप घर तक ही महदूद रहें। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? ऐसे लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो ये कोविड में जो हाल हुआ है, आज औरतों की जो मतलब हुनर है वो उभर के आ रही हैं। सब घर में सीमित रहती थी, ये मत करो, वो मत करो, पर्दा करो। आज जब इस कोविड में मतलब पूरा मामला, जितना बिजनेसमैन सब डूब चुके हैं, आज जो सारी घर की ख्वातीन है अपना हुनर ला कर सामने पेश ला दी हैं। मर्द को लग रहा कि हाँ मेरे पीछे है, उन लोग सोचते थे नहीं हम लोग ही खुद है, हम लोग सबसे आगे, हम लोग घर चला रहे हैं। ये चीज़ उन लोग के एक अंदर में था ये चीज़,
अब वो चीज़ ख़त्म हो गया, इस कोविड ने पूरा बर्बाद कर चुका। तो उन लोगों को समझ में आ रहा है, मर्दों को भी, कि हाँ मेरी घर की औरतें कुछ कर रही हैं माशाल्लाह। यही मैसेज देना चाहती हूँ। लड़कियाँ औरतें खुलकर आएँ, अपना हुनर दिखाएं, कभी पीछे ना रहें, ना डरें, ना किसी चीज़ से डरें, बल्कि सामने आए, अपने घर वाले से बात करें। अगर कुछ भी हुनर है तो बोले मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ, पढ़ाई पूरा कंप्लीट करें, अपनी एजुकेशन कभी भी ख़त्म ना करें। ये एजुकेशन जो लड़कियों की हथियार है। मैं यही बच्चों को भी, सबको बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, पढ़ाई पूरा कंप्लीट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े, कभी पीछे ना देखें, हमेशा आगे बढ़े, इंशाल्लाह हमेशा कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। The organizing committee of All India Business Summit, and especially the convener and the managing director of Maishiat, Janab Danish Riyaz Sahab, fellow speakers, body entrepreneurs, and the students from the management and the technology community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a pleasure of mine as a student of entrepreneurship to share my insights and experience of raising the capital, raising the fund from the capital market, especially the Bombay Stock Exchange. SME, the micro and small medium enterprises, as we know, around 7.5 million in India. They contribute more than 45% to the export of India, around 30% of the GDP, and every year they create 120 million jobs. That's the importance of the SME segment compared to the large enterprises in India. However, like any business, even the small enterprises, the startups, they do need the fund, the capital to develop their business, to scale their business. Capital is an important asset. Today we were talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the age of 40, he started his initiative of the message of the. What was he doing before the age of 40? If you read the seerah of Prophet Muhammad, at the age of 13, that's the first trade journey from Makkah to Syria, along with his uncle, Sayyidina Abu Talib. So he started his career of business or the entrepreneurship at the age of 30. Having said that, 27 years, 13 to age of 40, he was an entrepreneur. In the theory of business, when we define the business ecosystem, it is said that the business is not possible alone with the entrepreneur. There is an ecosystem of a triangle. The entrepreneur is one pillar of the entrepreneurship. At the same time, there are two entrepreneurs, two more pillars. Number one, the investor. Number two is the mentor. So it's a triangle of three different pillars: entrepreneur, mentor, and the investor. And with the seerah of Prophet, we know that he was an entrepreneur. Sayyidina Khadija, he used to trade the asset of Sayyidina Khadija, al-Mu'mineen, and she was the investor to his business. And in the initial period, Sayyidina Abdul Muttalib and then later on the Abu Talib was the mentor with him. So this is the ecosystem. So it is very essential. Today I can see like a lot of women entrepreneurs in the capacity of either as a businesswoman or as an investor. Alhamdulillah, they are present here. And Maishiat is playing a role of that mentor. They are giving a platform to network. They are giving the platform to connect the investor, the mentor, and the entrepreneurs. So I must congratulate Janab Danish Riyaz Sahab for this wonderful initiative. Now talking about the raising the capital, when we talk about the finance, the need of the finance, the Indian financial system, it is basically the entire financial market. It is divided into three: capital market, money market, and the commodity market. Commodity market is where all these
commodities, gold, coppers are traded. We know the money market, the banks. The third is the capital market. In the capital market, there are three different things: equity, debt, and then derivatives. Today we are going to talk about when we say raising the capital from the stock market. जनाब शालम साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा आप तमाम लोग, अजीज रहमान साहब आपको बहुत, जनाब अब्दुल रहीम साहब की बताएं, अब्दुल रहीम भाई, हबीबुल्लाह साहब की खिदमत में अब्दुल रहीम भाई, अब्दुल रहीम भाई, अब्दुल रहीम भाई। जनाब हबीबुल्लाह साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि असलम भाई हबीबुल्लाह साहब की खिदमत में आप, और मैं अमीरुल नूर एम नूरुल इस्लाम साहब से चाहूँगा कि आप असलम खान साहब की खिदमत में एक मिनट। सैफ आलम सिद्दीकी साहब आप तशरीफ ले आए। अशरफ जमाल, मैं चाहूँगा अशरफ अली भाई, अशरफ अली साहब थैंक यू। हुज़ैफा अरशद, सब ठंडा हो गई है। तलहा भाई, तलहा जमाल कासमी साहब, सानिया समी, JKB न्यूज़, एमको न्यूज़,
एमक्यू न्यूज ऑफ अल अमीन मिशन कोलकाता। इस पूरे सफर में जिसने बहुत ही शानदार मुजाहरा किया है और इस पूरे सफर में जिन्होंने खुद मईशत का साथ दिया है, मैं चाहूँगा जनाब हबीबुल्लाह साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और इस बार का एक ऐसा अवार्ड जिसमें नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस के साथ लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जनरेशन्स में इन्वॉल्व हैं, उसका नाम है खैतान। इकला चलो। मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर खैतान इकला चलो के जनाब जुनैद खान साहब से, जुनैद अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाए। जनाब जुनैद अहमद, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर। कोलकाता के अंदर अवार्ड फंक्शन इससे पहले भी हुए हैं और उस अवार्ड में भी एक कंपनी हमारे साथ शामिल थी। इस बार भी उसने नॉमिनेट किया अपने आप को और कस्टमर फ्रेंडली कंपनी ऑफ द ईयर उमर रिटेल जनाब अनस साहब, उमर अनस साहब पे मौजूद हैं। उमर शमीम साहब, हमारे बीच एक शख्सियत और मौजूद है जो बेंगलोर से तशरीफ लाई। आपने उनको सुना भी, उनके वर्जन्स को भी देखा, उनके ज़रिए मुख्तलिफ बिजनेसेस को जिस तरह से प्रमोट किया गया है उसको भी देखा। इस बार हमने प्रमोटिंग हलाल कंपनी ऑफ द ईयर रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बेंगलोर को दिया है। आप तमाम की गिरराहतों के साथ जनाब राशिद रहबर साहब, रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बेंगलोर, प्रमोटिंग हलाल कंपनी ऑफ द ईयर।
बीच एक और शख्सियत जो मौजूद है जिन्हें हमने सुना भी स्टेज पे, और एक शहर से जुड़ा, बंगाल में रहते हुए, चूँकि मगरबी बंगाल से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से के किनारे है, लिहाजा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो मिलना चाहिए था वो एक्सपोजर नहीं मिला है। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनका इस्तकबाल करते हैं और बेहतर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से जनाब अजीजुर रहमान साहब स्टार्लिंग सिल्क्स मिल प्राइवेट लिमिटेड को नवाजते हैं। जनाब अजीजुर रहमान साहब एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2001। जी आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा नहीं उसी को तो डॉक्टर जमानी को दिखा दिए हैं, टेस्ट हो गया। नहीं ठीक है, आप परेशान मत होइए ना। ये वाला हाल है। कभी कभी गलती भी लगती है। दो चीज़ में हमने कोशिश की है कि लोगों को अवार्ड से नवाजा जाए, एक तो बिजनेस के फील्ड में, दूसरे मीडिया के फील्ड में। मीडिया के फील्ड में जो लोग कम्युनिटी ओरिएंटेड हैं, मीडिया हाउसेस हैं, कम्युनिटी के इश्यूज़ को जो उठाते हैं और कम्युनिटी के इश्यूज़ को जो प्रमोट करते हैं, हमने अपने यहाँ उसका भी एक सिलसिला रखा है। और दो नाम के साथ, एक लोकल इमर्जिंग मीडिया ब्रांड और इमर्जिंग मीडिया ब्रांड के साथ हम लोगों को जो मीडिया की फील्ड में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करते हैं। हमारे बीच जनाब एसएन खुर्शीद साहब मौजूद हैं, जो जदीद अखबार से झारखंड और बिहार का एक बड़ा ग्रोइंग अखबार है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और क्लासेस के फील्ड पे मुख्तलिफ क्लासेस यहाँ पे काम कर रही हैं और उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन भेजा था हमारे पास। जिस कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था उस कैटेगरी में हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जो प्रोविज़न है वो ये स्टार्टअप ऑफ द ईयर एस्पिरेशन क्लासेस कोलकाता, स्टार्टअप ऑफ द ईयर एस्पिरेशन क्लासेस कोलकाता। जनाब आसिफ साहब का खैर मकदम है। हमने शुरू किया था वर्टिकल में, एक वर्टिकल लगा तो दूसरा एक दूसरा अवार्ड था हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर का, जो पटना में अल खैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको हम लोगों ने दिया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर
नैयर फातमी साहब का हम यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। और कलम का अवार्ड लोकल मीडिया ब्रांड के तौर पे कलम को हमने इंतखाब किया था। ये आज का अवार्ड फंक्शन था छोटा सा, ये सिर्फ इसलिए था कि आपको इंकरेज किया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, आपको आपके साथ रेगुलराइज करने की कोशिश की जाए। उसके बाद तीसरे मैं चाहूँगा कि तमाम अवार्डीज़ अगर एक साथ स्टेज पे आ जाए। अब कोई ना कोई खड़ा ही हो जा रहा है।